Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now let us solve question number 18. It is one of the most important question of this exercise or this chapter you can say. ठीक है? So question क्या है? Let us see. If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 by P square equal to 1 by A square plus 1 by B square. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने इसकी फिगर भी ड्रॉ कर दी है. इसमें जस्ट सी एक्स एंड वाई एक्सिस आर गिवन, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. लेट एल इज द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी एक्सिस एक्स एंड एक्सिस वाई आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, intersecting x axis at point A and y axis at point B. Then this length OA is the x intercept and coordinate of point A will be A0. Likewise, OB is B intercept, its measurement is B unit and coordinate of point B will be 0 and B. ठीक है? Now OP is perpendicular from origin, यानी this is the length of perpendicular from origin to the line L. It is given as P. Now coordinate of origin is known to us, that is 0 0. Then हमें शो करना है कि 1 by P square equal to 1 by A square plus 1 by B square. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया, ड्राइंग भी समझ में आ गई होगी. Now let us solve it. So क्या है? L is the given line that makes x intercept A and y intercept B. So equation of line L in intercept form will be what? That is x by A plus y by B equal to 1. ठीक है? So let us note down. Let L be the line which makes intercepts A and B on x and y axis respectively. ठीक है? x और y एक्सिस पर इससे बने हुए इंटरसेप्ट a और b हैं. सो इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन L is x by a plus y by b equal to 1. This is the equation of line in intercept form when x intercept and y intercept both are known to us. ठीक है? Now इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो दिस विल बी bx plus ay equal to ab. ये ab LCM होगा और इसको जब हम 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन विल बिकम bx plus ay equal to ab, और सेम कैन बी रिटन एज bx plus ay minus ab equal to 0. ठीक है? Now let us consider this one as equation 1. So now equation of line L is known to us, यानी हमें जो लाइन L है उसका इक्वेशन मालूम हो गया. किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में. और a की जगह क्या है? b, b की जगह a एंड c की जगह माइनस ab. Now we know that distance of a point, distance of a line from a given point is, क्या होता है? इफ गिवन पॉइंट इज x1 y1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax plus by plus c equal to 0, then by formula distance d will be equal to how much? a into x1 plus b into y1 plus c upon under root a square plus b square absolute value. ठीक है? So now here also क्या गिवन है? since distance of line 1 given in equation 1, या line L from origin O00 is P. ये हमें गिवन है. Since we know that since distance of point
x1 y1 px1 y1 from the line ax plus by plus c equal to 0 each, क्या होता है d equal to ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square and its absolute value। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूले से जो गिवन पॉइंट ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, यानी x1 y1 0 0 है, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की जगह क्या है bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0। हेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O0 0 फ्रॉम द लाइन, क्या है इक्वेशन bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0 इज गिवन एज p। ये मालूम है कि ये डिस्टेंस p है, सो p विल बी इक्वल टू, हेंस p विल बी इक्वल टू b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ab अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये एज पर गिवन कंडीशंस p की वैल्यू इतनी होगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो और p विल बी इक्वल टू माइनस ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम जो भी लेंगे आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी रहेगी, जब वैल्यू बाहर आएगी तो हमेशा पॉजिटिव होगी। और p विल बी इक्वल टू ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ भी वैल्यू होगी बाहर आने के बाद हमेशा पॉजिटिव होगी। नाउ अब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से। सो नाउ इसको हम ले लें इक्वेशन 2। लेट अस कंसीडर दिस वन एज इक्वेशन 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। नाउ बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें p स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसको इनवर्ड एंड यानी दूसरी साइड ला करके रेसिप्रोकल लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 बाई p स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई p स्क्वायर, क्योंकि जब p स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो 1 बाई p स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर आके न्यूमरेटर हो जाएगा एंड a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर डिनोमिनेटर होगा। नाउ अब हम इन दोनों को a स्क्वायर प्लस b सॉरी a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा और a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई p स्क्वायर। अब यहाँ b स्क्वायर से b स्क्वायर और इधर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो क्या मिलेगा और 1 बाई b स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई p स्क्वायर। और सेम कैन बी रिटन एज और दिस विल बी रिटन एज 1 बाई p स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर। ठीक है, हेंस 1 बाई p स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर इज प्रूव्ड। ठीक है, दिस वाज टू बी प्रूव्ड, तो ये रिजल्ट हमने इस तरह से प्रूव किया। ठीक है, समझ में आ गया तो नोट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।